Welcome back, dear students. This is Dharamveer Singh, Biology faculty of Subra Singh Children's Academy. Students, we are discussing about chapter photosynthesis in higher plants, and so far in this chapter we are discussed that what is the biosynthetic phase and first cycle of the biosynthetic phase, that is the C3 cycle or Calvin cycle. In Calvin cycle we studied that there are some products of light reaction or energy rich compounds of light reaction that are used for the fixation of the carbon dioxide. क्या हो रहा था बेटा, जो प्रोडक्ट से लाइट रिएक्शन के ATP और NADPH, these products are used in the biosynthetic phase for the fixation of carbon dioxide. We have studied so far that the first acceptor of carbon dioxide in the case of C3 plant is RUBP or ribulose 1,5 bisphosphate. What? Ribulose 1,5 bisphosphate. Ribulose 1,5 bisphosphate is a substrate that first time accept a carbon dioxide molecule along with a water molecule and form first stable compound, that 3-phosphoglyceric acid, means it is a glyceric acid compound that have phosphate at carbon number 3. This reaction is catalyzed by an enzyme that is known as Rubisco. So the first cycle or first phase of the C3 cycle is catalyzed by an enzyme ribulose 1,5 bisphosphate carboxylase oxygenase, and at this time the products are two molecules of 3-phosphoglyceric acid. So in C3 cycle, for each carbon dioxide molecule, for each CO2 molecule, we have to use, for each carbon dioxide molecule we have to fix, we require 3 ATPs and 2 NADPH for each, means for one carbon dioxide molecule. So for 6 carbon dioxide molecule, for 6 CO2 molecules, we have to use 3 into 6 ATPs and 2 into 6 NADPH. So this is the energy requirement for the fixation of 6 molecules of carbon dioxide. So at last when we fix 6 molecule, then we get a glucose molecule, six into 3 means 18 molecules of ADP and 12 molecules of NADP plus. This is the end product of C3 cycle. Okay, so now we have only discussed what happens when this Rubisco catalyze the reaction when a ribulose 1,5 bisphosphate combined with carbon dioxide, means carboxylation. When Rubisco catalyze the addition of carbon dioxide with RUBP, when Rubisco catalyze the formation of or addition of carbon dioxide with RUBP, then this reaction is known as carboxylation, and at this time this Rubisco perform carboxylase activity. This time this Rubisco performing carboxylase activity but in certain stress conditions. क्या होगा बेटा,
at the time of stress conditions when the amount of carbon dioxide inside the leaves is less than compared to the oxygen. So one important thing we have to notice here that the enzyme Rubisco have an active site that is flexible for the binding of carbon dioxide and oxygen both, or we can say that Rubisco is an enzyme that have active site for the binding of carbon dioxide and oxygen both, but it have more affinity. Affinity for the carbon dioxide is much more than compared to the oxygen. क्या होता है बेटा, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रुबिस्को की एफिनिटी ज़्यादा होती है इन कंपेयर टू ऑक्सीजन. लेकिन क्या होता है बेटा, जैसे 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 फोटोसिंथेसिस बढ़ती है या हम बोलते हैं मॉर्निंग से लेकर के टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है और फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता चला जाता है, तो कुछ देर के बाद जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है उस कंडीशन में बहुत सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं CO2 के काहे में कन्वर्ट करे जा चुके होते हैं ग्लूकोज में. उस टाइम लीफ के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उतने ज़्यादा अमाउंट में उसकी विसिनिटी में कार्बन डाइऑक्साइड होती नहीं है. उस कंडीशन में क्या करता है, जो रुबिस्को होता है, द रुबिस्को शोज इट्स ऑक्सीजनेज एक्टिविटी. तब बेटा रुबिस्को क्या करता है, तब रुबिस्को अपना ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है. एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम दिस रुबिस्को कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड. मीन्स वी कैन से दैट द एडिशन ऑफ, और वी कैन से दैट सिंपली द बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विद सेम एक्टिव साइड इज कॉम्पिटिटिव. कैसी होती बेटा, कॉम्पिटिटिव. एक सेम एक्टिव साइड से बाइंड करने के लिए रुबिस्को की कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में एक कॉम्पिटिटिव रिलेशनशिप होती है. अगर ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम हो जाए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम हो जाए उस टाइम रुबिस्को से ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है. दैट्स व्हाई देयर बाइंडिंग इज नोन एज कॉम्पिटिटिव. ओके, तब बेटा जब रुबिस्को के साथ में ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है, दैट टाइम इट शोज देयर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी. क्या बेटा शो करेगा, ये अपना ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा. एंड व्हेन रुबिस्को शोज इट्स ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, देन दैट पर्टिकुलर टाइम दे फॉर्म ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड दैट इज नोन एज फॉस्फोग्लाइकोलेट. क्या बेटा बनाएगा, एक मॉलिक्यूल तो बनाएगा 3PGA का, लेकिन जो दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा वो एक 2 कार्बन कंपाउंड होगा जिसको हम फॉस्फोग्लाइकोलेट बोलते हैं. दिस फॉस्फोग्लाइकोलेट अल्टीमेटली कन्वर्टेड इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन ए सीरीज ऑफ रिएक्शन एंड लॉसेस 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और क्या करता है बेटा, ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट था एक सीरीज में चलता है और एक सीरीज की रिएक्शंस में चल करके आगे जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज करता है. दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन, बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फोटो रेस्पिरेशन. इसलिए बेटा क्या नाम देते हैं उसको, फोटो रेस्पिरेशन. हियर वी विल एक्सप्लेन अबाउट द फोटो रेस्पिरेशन इन डिटेल, एंड ऑल्सो आई वांट टू टेल यू दैट दिस फोटो रेस्पिरेशन नीड्स 2 more additional compartments or cell organelle incorporate with chloroplast. बेटा कौन कौन से cell organelle, chloroplast, peroxisome, then mitochondria. So here 3 compartments or 3 subcellular organelles are used. One is chloroplast, another is peroxisome, and third one is mitochondria. Okay, so what happens in photorespiration we will clear here. Students, I want to explain here one more thing, that photorespiration is a characteristic feature of C3 plants. It's only found in C3 plants. That's why I am explaining here it first.
बिफोर द C4 साइकिल। बेटा C4 पाथवे या C4 साइकिल से पहले हम फोटो रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इन स्ट्रेस कंडीशंस C3 प्लांट्स आर shows this special type of mechanism. That's why I am going to explain here first photorespiration. After that I will discuss about the C4 pathway. So what happens? We know that when Rubisco shows carboxylase activity, then it simply form two molecules of PGA or phosphoglyceric acid when combined with carbon dioxide. But in different case, when RUBP combined with oxygen, this time Rubisco shows its oxygenase activity. This time Rubisco shows its oxygenase activity. So what happens here? We know that this is a 5 carbon molecule. Ribulose biphosphate is a 5 carbon molecule, and when it combined with oxygen, then it form only 5 carbons, and out of these 5 carbon, 3 carbons are leaves from here in the form of phosphoglyceric acid. क्या होता है बेटा? इन 5 कार्बन में से 3 कार्बन तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली कम इनटू द C3 साइकिल। और बेटा कहाँ पे चले आते हैं? C3 साइकिल के अंदर चले आते हैं। बट two molecules of carbon that are converted in a product that is known as phosphoglycolate. What is phosphoglycolate? So phosphoglycolate is a 2 carbon compound. That's why this cycle is also known as C2 cycle. That's why this cycle is also known as C2 cycle, though it's carried out in C3 plant. But and product is formed after the oxygenase activity of Rubisco when oxygen combined with substrate RUBP or ribulose 1,5 bisphosphate, then they form one molecule of phosphoglyceric acid in compared to 2 molecules that are formed when Rubisco shows its carboxylase activity. अब बेटा क्या होगा? This whole we can say that reaction occurs inside the chloroplast. Now this phosphoglycolate with the enzyme phosphatase, removed PI, बेटा क्या होता है? इनके अंदर से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकाल दी जाती है एंड दिस टाइम दिस कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोलिक एसिड। और बेटा इस टाइम में काहे में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोलिक एसिड. दिस ग्लाइकोलिक एसिड, नाउ दिस होल प्रोसेस कैरिड आउट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. ये पूरा का पूरा प्रोसेस बेटा कहाँ पे हो रहा था? क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा था, इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. नाउ दिस ग्लाइकोलिक एसिड transported to another cell organelle that is known as that participate here is peroxisome. What is this? Is peroxisome. This cell organelle is peroxisome. Now what happens here? Here this glycolic acid converted into glycolic acid. Glycolic acid converted into glyoxylate, and this time it remove one hydrogen peroxide molecule, H2O2 molecule. Inside the peroxisome, due to the presence of catalase, an enzyme catalase breaks this H2O2 molecule into the half O2 plus H2O, half O2
और H2O ब्रेक कर देता है बेटा और इस पेरोक्साइड इफेक्ट को खत्म कर देता है। दैट्स वाई दिस सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज पेरोक्सिसोम, बिकॉज इसके अंदर बेटा एक एंजाइम होता है कैटालिस जो ड्यूरिंग द फोटो रेस्पिरेशन जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, इसे अपना पेरोक्साइड इफेक्ट ना दिखा पाए तो उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैटालिस्ट कन्वर्ट कर देता है वाटर और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। नाउ दिस ग्लाइऑक्सैलेट कन्वर्टेड इनटू द एन अमाइनो एसिड ग्लाइसिन। बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अमाइनो एसिड ग्लाइसिन में। ये ग्लाइसिन भी बेटा 2 कार्बन कंपाउंड है। कितना है? ग्लाइसिन भी एक 2 कार्बन का कंपाउंड होता है जिसका अगर हम जनरल फॉर्मूला लिखें देन इट इज NH3COOH. This is the molecule of glycine. This glycine once in one and in another cycle another glycine molecule. So 2 glycine molecules are, this is mitochondria. This is mitochondria. This is mitochondria, third. So one is chloroplast, another cell organelle peroxisome, and third one is mitochondria. So this glycine comes into the mitochondria, and in mitochondria the process begins when two molecules of glycine at a time comes inside the mitochondria, and this time we know that glycine have एंड मॉलिक्यूल ऑफ NH3। बेटा इसके अंदर NH3 का भी मॉलिक्यूल है, इसके अंदर COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी लगा हुआ है। दिस टाइम वी नो दैट हियर 2 molecules of glycine, 1 molecule of glycine have 2 carbons, then 2 molecule of glycine have 4 carbons. But here what happens? This glycine with the help of different type of enzyme convert another amino acid serine, and serine is a 3 carbon compound. कितना होता है बेटा? 3 carbon compound. So here something release out, here carbon dioxide release out. That's why this is known as photorespiration, because in mitochondria decarboxylation occurs that releases 1 carbon dioxide molecule, and this time it uses 1 ATP molecule also. Here 1 ATP molecule is used, and here deamination also occurs. 1 molecule of NH3 releases, that is known as deamination. So in mitochondria, from the formation of serine from glycine releases 1 carbon dioxide molecule that uses 1 ATP, and release of 1 ammonia molecule or NH3 molecule, that is known as deamination. Now this serine comes again inside the peroxisome. Through a reaction, this serine convert into the hydroxypuric acid, and this hydroxypuric acid converted into glyceric acid, and inside, now this glyceric acid comes inside the chloroplast with the help of phosphorylation. बेटा क्या होता है इसका? ATP का यूज करके इसका phosphorylation होता है, and at this time it converted into 3 phosphoglyceric acid. क्या में बेटा कन्वर्ट हो जाती है? 3 phosphoglyceric acid. Now this 3 phosphoglyceric acid again comes into the C3 cycle. बेटा फिर क्या होगा? 3 phosphoglyceric acid फिर से C3 cycle में आ जाएगा. So students, here we have seen that the use of the ATP takes place in twice. बेटा क्या हुआ? ATP का यूज तो हो रहा है, बट यहाँ पे नेट गेन किसी भी चीज का नहीं हो रहा है. That's why this is known as a wasteful process. बेटा इसलिए इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया? वेस्टफुल प्रोसेस. NCERT बोलती है दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज वेस्टफुल प्रोसेस, बिकॉज यहाँ से एक CO2 का भी लॉस हो जा रहा है जिनका हमको यूज करना चाहिए था. CO2 भी निकल जा रहा है और साथ साथ में ATP का भी यूज हो जा रहा है. दैट्स वाई इट इज नोन एज वेस्टफुल प्रोसेस. बट अगर बेटा हम इसको ध्यान से देखें, सो वी हैव टू लॉस 2 कार्बन्स. यहाँ पे हम बेटा 2 कार्बन मॉलिक्यूल लॉस करते.
लेकिन कुछ एक फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन हुआ प्लांट्स के अंदर, और वो जो यहाँ पे आते आते जब 2 ग्लाइसिन का मॉलिक्यूल बनता तब टोटल 4 कार्बन के एटम हो चुके होते और उन 4 CO2 मॉलिक्यूल्स को हम बेटा क्या करते, लॉस कर देते। लेकिन क्या किया गया है, उन 4 में से सिर्फ एक मीन्स 25% कार्बन डाइऑक्साइड को हम लॉस कर रहे हैं, 75% फिर से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के फॉर्म में हमारे साइकिल में चली आ रही है। तो एक तरीके से ये बेटा प्रोसेस क्या हो सकता है, एक तरीके से यूजफुल भी है, लेकिन हो क्या रहा है, वो जो नॉर्मली बन जाना था, उस मॉलिक्यूल को जो नॉर्मली बन जाना था, यहाँ पे उसके लिए हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है। दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज वेस्टफुल प्रोसेस। इसलिए बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, वेस्टफुल प्रोसेस बोलते हैं, और हमारी एनसीईआरटी ने भी इसको ऐसे ही लिखा हुआ है। तो एक बात हम कंफर्म करेंगे, फोटो रिस्पिरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट्स कैरीड आउट इन C3 प्लांट when rubisco shows oxygenase activity in stressful conditions, where in stress conditions में बेटा जब हमारा रुबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाता है तब C3 प्लांट्स के अंदर एक स्पेशल प्रोसेस चलती है, इसको हम नाम देते हैं फोटो रेस्पिरेशन। दिस फोटो रेस्पिरेशन नीड्स 3 डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल ऑर्गेनेली, number 1 chloroplast, number 2 peroxisome, and number 3 mitochondria. So what happens when the products of photorespiration comes inside the glycine inside the mitochondria, then it releases carbon dioxide. We know that in respiration carbon dioxide is released, same way in photosynthetic respiration carbon dioxide is also released, that's why it is known as photorespiration। बेटा इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, फोटो रेस्पिरेशन नाम दिया गया। वैसे तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा था, जिस मॉलिक्यूल को नॉर्मली बन जा रहा था, उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमने बहुत सारी एनर्जी खर्च करी है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज अ वेस्टफुल प्रोसेस। बेटा इसीलिए एनसीईआरटी इसको क्या बोलती है, इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। बट अगर हम एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जहाँ पे हमारे 4 मॉलिक्यूल लॉस हो जा रहे थे, वहाँ पे सिर्फ हमने 1 को लॉस किया है और 3 को फिर से रीगेन कर लिया है, 3 को फिर से रीगेन कर लिया है। तो एक तरह से ये एक एडाप्टेशन भी है। बट द नेक्स्ट थिंग इज दैट दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ C3 प्लांट। C3 प्लांट के अंदर बेटा क्या होता है, मीजोफिल सेल्स के अंदर ही रुबिस्को होता है, मीजोफिल सेल्स के अंदर ही C3 साइकिल चलनी होती है। लेकिन और उसी वजह से बेटा क्या होता है, जब स्ट्रेस कंडीशंस आती हैं तब वहाँ पे हमारा जो रुबिस्को होता है वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है और ये फोटो रेस्पिरेशन चलता है, इसकी वजह से C3 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी घट जाती है। ये प्रॉब्लम ना आए, ये स्ट्रेस कंडीशंस के अंदर भी प्लांट्स अच्छे से परफॉर्म कर पाएं, इसके लिए कुछ प्लांट्स इवॉल्व हुए। इसके लिए बेटा क्या हुआ, कुछ प्लांट्स इवॉल्व हुए यहाँ से, और उन्होंने क्या किया, CO2 को कैरी करने के लिए, CO2 को फिक्स करने के लिए अलग चैम्बर बना लिए। क्या किया उन्होंने, CO2 को फिक्स करने के लिए अलग चैम्बर बना लिए, और अपने रुबिस्को को जहाँ पे वो C3 साइकिल चलाते, जहाँ पे क्या चलाते वो C3 साइकिल चलाते, उसके लिए उन्होंने अलग चैम्बर बना लिया। मीन्स उन्होंने क्या किया, अपनी मीजोफिल सेल से बेटा क्या किया, मीजोफिल सेल से रुबिस्को को हटा दिया और रुबिस्को को कहाँ ले आए, एक स्पेशल टाइप की सेल्स में। कहाँ पे ले आए, एक स्पेशल टाइप की सेल्स में ले आए, जिनको हमने नाम दिया बंडल शीथ। दीज प्लांट्स आर मोर अडॉप्टेड, और इनका जब मीजोफिल सेल्स के अंदर जब इन्होंने कार्बन को कैरी किया तो जो पहला प्रोडक्ट या पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना वो 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड था। बेटा क्या था वो, 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड था। दैट्स वाई दीज प्लांट्स आर नोन एज C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स आर मोर टेम्परेचर, ऐसा बोल सकते हैं वो टेम्परेचर में मोर अडॉप्टेड हैं, ज़्यादा अडॉप्टेड है इन कंपेयर टू C3 प्लांट्स। उनके अंदर ऐसा कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, बिकॉज वो इवॉल्व होकर के बने हैं, और उन्होंने इस फोटो रेस्पिरेशन को ना होने के लिए एक अपने अंदर स्पेशलाइज एनाटॉमिकल बोल सकते हैं एडॉप्टेशन लेके आए। दिस एनाटॉमिकल एडॉप्टेशन और दिस स्पेशलाइज एनाटॉमी इज नोन एज क्रांज एनाटॉमी।
इस एनाटॉमी को बेटा क्या नाम दिया गया? जहां पे CO2 को कैप्चर करने के लिए अलग चैम्बर है और C3 साइकिल चलाने के लिए अलग चैम्बर है। दिस इज स्पेशलाइज्ड एनाटॉमी इज नोन एज ट्रांस एनाटॉमी दैट इज ओनली फाउंड इन C4 प्लांट्स। तो बेटा क्या हुआ, ये प्रोसेस ना हो, इतना सारा एनर्जी ना खर्च हो, ये वेस्ट प्रोसेस ना चले, इसके लिए एक नया और स्पेशल टाइप का एडॉप्टेशन आया कुछ प्लांट्स के अंदर, और उन प्लांट्स को हम C4 प्लांट्स बोलते हैं। C4 प्लांट्स के अंदर क्या एडॉप्टेशन है? फोटोसिंथेसिस को कम करने के लिए या फोटोसिंथेसिस को बिल्कुल रिड्यूस करने के लिए, वो है क्रांज एनाटॉमी, जिसके बारे में हम आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा एक्सप्लेन करेंगे। सो आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। Kindly watch the video and if any doubts then please comment me. Okay, thank you dear students.